میں بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی لاڈ، میں ہی ان کی اکلوتی اولاد۔ میرے اماں ابا مجھ سے بے حد پیار کرتے۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تو تھا، اس وجہ سے میں ان کی آنکھ کا تارا، اپنے والدین کے کہنے پر اپنی پڑھائی کو جاری کیا ہوا۔ سارا دن خوب کھیل موج، میں نے کبھی اپنی پڑھائی پر مگر پھر بھی ہر سال کے اختتام ہمیشہ اول آئے۔ میرے ابا ایک فیکٹری کے مالک، کافی امیر گھر سے تعلق، اس لیے میں کسی کو کچھ بھی نہیں، ہر ایک کو اپنے سے اور نیچا ہی سمجھ۔ میرے ابا بھی پڑھائی کے سخت خلاف، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا ہاتھ، کیونکہ وہ اس فیکٹری کو سنبھالتے اب وہ آرام کرنا، میں بھی بس یہی چاہتی تھی کہ بابا کو سکون کرنا، مگر میری اماں مجھے پڑھائی پر اکسایا کر کہ دیکھو بیٹا، میں تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے کہ تم تعلیم بھی حاصل کرو اور اپنے آپ کو پورا مکمل کرو۔ ہمارے پاس تو اس وقت نہ پیسے تھے نہ ہی اچھا گاؤں میں رہتے تھے، اس وجہ سے میں تعلیم حاصل نہ کر سکا۔ تمہارے پاس یہاں پر سب میسر، اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی، اچھے سے اچھے ٹیچرز گھر آ کر پڑھا۔ میں ان اصرار پر اکثر مان جایا بھی کر، ہر دن میں یہی سوچ کہ میں اب کل سے اسکول نہ جاؤں، کر پھر اماں مجھے لاڈ پیار کر کے بھیج ہی دیا۔ میں بھی ہفتے میں 1-2 چکر اسکول کے لگا لیا۔ ان دنوں میٹرک امتحان دے کر ابھی فارغ کہ ایک دن اچانک میں نے وہ خبر سنی جس سے میرے پاؤں سے فیکٹری میں بوائلر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگ، جس سے میرے والد صاحب شدید زخمی ہو، کیونکہ بوائلر ان کے دفتر سے کچھ ہی فاصلے پر۔ فیکٹری کا تو زیادہ نقصان نہ ہوا، پر میرے ابا کی حالت خطرے میں۔ ہم شہر کے سب سے اعلیٰ اسپتال میں ابا کو مگر اس کا بھی کچھ خاص فائدہ۔ میں اور اماں جائے نماز پر بیٹھ کر ابا کے لیے خوب دعائیں کر کہ کچھ ہی پی کر میرے والد صاحب کی جان بچ۔ میں اپنے ابا سے بہت زیادہ پیار کرتی اور میری سوچ بھی انہی سے۔ ہم نے ڈاکٹر کو منہ مانگی رقم تاکہ میرے والد صاحب کی جان بچ سکے، مگر پیسوں سے جان تھوڑی خریدی جا سکتی۔ تو ڈاکٹر حضرات نے خوب کوشش مگر وہ میرے والد صاحب کو بچانے ناکام۔ ہم اس دوران آپریشن تھیٹر کے اوپر لگی لال بتی کی طرف، تھوڑی دیر بعد یہ لال بتی بجھ، سمجھے کہ اب بات خطرے سے باہر ہے۔ میں بہت زیادہ اور اللہ کا شکر ادا میری دعاؤں کو قبول۔ امی اب افواہ کو صاف کرتے ہوئے دروازے کی طرف کی لگائے دیکھ رہے کب وہاں سے ڈاکٹر باہر نکلے اور ہمیں اچھی سی خبر۔ دیر بعد ڈاکٹر ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مریض کی بیوی کون ہے؟ اماں بولی میں ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے شوہر۔ ڈاکٹر صاحب منہ نیچے جھکائے ہوئے بولے کہ دیکھ بہن، زندگی موت اللہ کے ہاتھ، ہم نے بہت کوشش لیکن انہیں بچا نہ سکا، اب اس دنیا میں نہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ اماں زوردار جھٹکے سے زمین پر جا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں بامشکل اماں کو اٹھا کر بیڈ پر بیٹھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات ہوئی یا پھر شاید اس اچانک حادثے کی وجہ سے میرا دماغ، میں بس اماں کو ہوش میں لانا چاہ رہی اور اماں کو کہہ رہی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی، ابا ہمیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتے، مگر یہ سب صرف ایک خود کو جھوٹی تسلی دینے والی۔ اماں کچھ دیر بعد کھڑی، میں اور اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سے زندگی بدل، ہمارا تو اب کوئی بھی نہیں۔ ابا نے اماں سے لو میرج، پورے گھر کے خلاف جا، اس لیے گھر والوں نے اماں کو اور ابا کو الگ، ابا اماں کو لے کر ایک بہت بڑے شہر میں الگ سے رہ رہے تھے۔ چند دن میں اور میری اماں صدمے کی حالت میں ہی رہے، ابا کے کفن دفن سارا انتظام اماں نے خود ہی سنبھالا۔ اماں میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگی دیکھو شاید اب تمہارے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، پھر بھی تم نے گھبرانا نہیں، تم اپنی پڑھائی پر توجہ۔ میں نے اماں کو خوب منع کہ میں اب فیکٹری سنبھالوں، اسٹڈی نہیں کروں، مگر میری اماں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نام، لہٰذا میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر اماں اب فیکٹری کے کام کو سنبھالنے لگی، خوب محنت کرتی اور ہمیشہ کی طرح میری ہر خوشی ہر غمی میں شریک ہوتی۔ حالانکہ اماں سارا دن فیکٹری میں کام کرتی مگر اس کے باوجود گھر کا سارا کام اور میری ساری دیکھ بھال، میری اسٹڈی کا سارا کام خود سے، جس بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی سارا کام ماما ہی کرتی۔ میری والدہ ماں اور باپ کی طرح میری پرورش کر، انہوں نے کبھی مجھے باپ کی کمی، یہ میری ماں ہونے کے ساتھ ساتھ میری ہمدرد بھی اور دوست۔ جب میں یونیورسٹی لیول پر تو وہاں میرا ایک جس کا نام دانیہ، یہ دیکھنے میں نہایت مست، یہ کالج میں ہر موقع پر میری خوب مدد کر، بھی اس سے کافی امپریس۔ اس کے بارے میں نے اماں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا۔ ایک رات ہم باہر گھومنے گئے کہ کال آئی، انم مجھ سے کہنے لگی کہ آج میری برتھ ڈے، میرے گھر پر ایک خوب شاندار، تم ضرور آنا۔ میری دوست انم نشے کی اور پارٹی میں اس نے کھانے کی بجائے طرح طرح کے نشے کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں اور میرا دوست کے پارٹی پر تو پہنچ جہاں مجھے میری دوست نے پرپوز بھی کیا۔ میں میری دوست انم میرے پاس، دیکھو آج میری برتھ، آج تمہیں یہ پینا ہی ہوگا، یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے ایک گلاس، میں نے جیسے ہی گلاس کیا مجھے چکر سا، میں وہیں زمین پر بیٹھ، میں ساری رات نشے میں دھت وہاں پڑی رہی۔ صبح جب ہوش آئی تو میں نے اپنے آپ کو انم کے کمرے میں نے اپنا موبائل چیک کیا تو اس پر اماں کے ڈھیر ساری کالز آئی۔ اماں ساری رات کافی میں نے فوراً سے پہلے اماں کو کال کی اور انہیں بتایا کہ میں خیریت گھر واپس آ رہی، جس پر اب میری اماں نے سکھ کا سانس کی اکلوتی اولاد میرے لیے بے حد۔ میں فوراً اٹھی اور انم کو ڈھونڈتے ہوئے باہر آ پہنچی، وہاں پورے گھر میں کوئی بھی موجود نہ، نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور گھر کو نکل گئی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو میں نے
सुख का सांस। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी रही। मेरी अम्मा मुझे देखकर मेरी तरफ लिपकी और मेरे गले लगकर रोने लगी। अम्मा को इस हालत में देखकर मैं परेशान। अम्मा की आंखें पूरी रात जागने के बायस लाल हो। मैं फौरन अम्मा के करीब हो गई और इनके गले लग और ज्यादा रोने सहारा इनको दिलासे दिए और कहने लगी, देखिए मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। और अम्मा ने मुझसे वादा लिया कि देखो बेटा, मुझसे वादा करो आइंदा कभी ऐसा काम ना। अगले ही दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में मुझे मेरा दोस्त दानियाल मिला और मुझसे कहने लगा, देखो तुम तो कहती थी कि तुम कभी नशा नहीं किया, अगर कल रात को तो तुम नशे में धुत। जिस पर मैं हैरान हो गई और कहने लगी, तुमने सोच भी कैसे लिया, मैं कभी नशा नहीं करती और ना ही करूंगी। जिस पर दानियाल हंसने लगा और कहने लगा कि ठीक है छोड़ो। मैं नहीं जानती थी कि मैं अनम के कमरे में कैसे। अगली रात मैं तो सो ही नहीं, मेरा जिस्म दर्द से ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी रात मुझे कोई मारता रहा। इधर दानियाल नशे का आदी हो। दानियाल ने मुझे कॉल की और बताया कि आज फिर से अनम के घर पर दावत है। मैंने खुद को रोकने की काफी कोशिश मगर फिर खुद को ना रोक सके, क्योंकि दानियाल ने मुझसे कहा था कि अगर मैं वहाँ पर नहीं आई तो अनम और वो सारे दोस्त मुझसे नाराज हो। इस वजह से मैंने अम्मी को कहा कि मैं रात को जल्दी वापस लौट और शाम को अनम के घर जा। मैं और दानियाल अनम और इसके दोस्तों के पास जाकर बैठ। दानियाल आहिस्ता आहिस्ता से नशा करने लगा। दानियाल ने मुझे भी कहा मगर मैंने साफ मना, मगर फिर अनम और इसके दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती ही नशे का गिलास दी। थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला से नजर आ रहा और सर में शदीद दर्द। मैंने फौरन से दानियाल को आवाज, तो दानियाल मुझे लेकर अनम के कमरे और साथ का आवाज लगा, ये लो अब ये तुम्हारे से, मुझे मेरी रकम दे दो। अनम बोल, हाँ सर। अनम ने उससे मेरे सामने एक मोटी सी तथी नोटों की और उसके बाद दानियाल वहाँ से मुस्कुराता हुआ। कुछ देर बाद अनम वापस कमरे में आई और उसने मुझे पानी और मुझे मेडिसिन। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो मेडिसिन, लेकिन उससे मेरा सर और लगा। कुछ देर बाद अनम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को, जिस पर मैंने कहा कि यार मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस मुझे। जिस पर अनम कहने लगे कि देखो मैं तुम्हें इस हालत में घर नहीं भेज सकती, बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी मुझे, मैं डॉक्टर को भेज रही हूँ, वो तुम्हारा चेकअप करेंगे और उसके बाद तुम बिल्कुल। मैंने भी हाँ में सर हिला। कुछ देर बाद एक लड़का कमरे में दाखिल और मेरे पास आया। अनम ने कहा ये डॉक्टर। मैं भी खामोश। अनम फौरन कमरे से बाहर चल, जाते हुए उस लड़के को ये कह गई कि ठीक है अब मैं बाहर चल। दानियाल दरवाजे में खड़ा, आप ही जाओ अनम डाल की। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई, मगर नशे की वजह से मुझे क्लियर नजर रहा था। वो लड़का जिससे डॉक्टर कहकर गए, वो मेरे करीब होते हुए मेरे हाथ को बहुत ही से थामते हुए, आप तो बहुत खूबसूरत, भला आपका इन पार्टियों में क्या, मैं तो जब से आपको देख रहा हूँ बस आप पे ही नजर। किसी और का तो ख्याल जहन में आता। मैं उसकी बातों पर हैरान। कहते हुए वो अपना हाथ ऊपर लाता गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद ना रहा। सुबह जब मुझे होश आई तो मैं बेड पर लेटी और वहाँ पर और कोई भी मौजूद था। जब मैंने इर्द गिर्द नजर डाली तो मेरी सर में शदीद दर्द होने लगी। मैं अभी तक दर्द की हालत से मैं उठ के बाहर लाउंज में आई और साथ ही एक कमरा था, उसका दरवाजा खोला। जब मैं उस कमरे में गई तो वहाँ से अनम की आवाज। मैंने सोचा कि अनम को जाके पूछती हूँ कि क्या मार। जब मैंने कमरे में तो दानियाल और एक साथ एक ही बेड पर लेटे एक दूसरे में बेहद मसरूफ और प्यार भरी बातें कर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सर में शदीद दर्द के झटके लगे और मैं वहीं पर गिर गई। मेरे गिरने से कमरे का दरवाजा खुल गया। अनम और दानियाल मुझे देखकर एकदम से और मुझे फौरन कमरे। कुछ देर बाद जब मुझे सही से होश आया तो मैं बहुत ज्यादा परेशान। मुझे इस सारे वाकये की समझ। जब मैंने अनम को कहा कि तुम कल मेरे पास डॉक्टर को लेकर आई, उससे साफ इनकार कर दिया। मैं तो किसी भी डॉक्टर को तुम्हारे पास, ये तुम्हारा। मैंने कहा कि दानियाल और तुम तो एक कमरे में थे, दानियाल अभी कहाँ है? तो वो बोली दानियाल तो यहाँ है ही नहीं, वो तो रात का नशे की वजह से सब कुछ वहम सा लग रहा है। मैं बेहद परेशान हो रही हूँ कि मुझे कुछ भी समझ के वाकई ही नशे की वजह से मेरे जहन में ये सब कुछ आ रहा है या ये है। उसी वक्त अनम ने मेरे आगे फोन करते हुए कहा कि तुम्हारी अम्मी रात की कॉल्स का है और उन्हें मैंने कह दिया है कि तुम्हारी तबीयत खराब, इस वजह से तुम रात को यहीं रुक। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब फिर से सारी रात बाहर। अम्मी की तो बहुत ज्यादा खराब। थोड़ी देर बाद बेल। अनम ने दरवाजा खोला तो अम्मी अनम के घर। अम्मी आगे बढ़ी और फौरन मेरे गले लगा। शाइस्ता मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रात नहीं रुक। जब अम्मी मेरे गले लगी तो अम्मी को मेरे मुंह से शराब की लाई। अम्मी ने फौरन से मुझे वहां से उठाया और लेकर घर आ गई और मेरा इन तमाम दोस्तों से ताल्लुक खत्म करवा दिया और साफ कह दिया कि आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओ, सिर्फ यूनिवर्सिटी जाओगी और वहां से भी मैं तुम्हें खुद किया करूँ। मैं खुद बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए अम्मी की हाँ में हाँ मिला दी और खामोशी से सर झुका दिया। इस बात का बाद में इल्म हुआ कि इस पार्टी में मेरे अब्बा की फैक्ट्री का एक पुराना सेक्रेटरी भी आया हुआ जिसका नाम जिब्रान है। ये अब्बा की फैक्ट्री का एक ईमानदार एम्प्लॉयर रह चुका। इस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा हुआ, मगर फिर भी अब्बा ने इसे नौकरी से निकाला। इसने इस सारे वाकये के जो भी मेरे साथ हुआ था उसकी बकायदा वीडियो बना ली। जब मैंने यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए तो मैं अपनी अम्मी के साथ फैक्ट्री में हाथ बटाने के लिए बकायदा फैक्ट्री जाने लगी। इस आदमी ने जब मुझे ये वीडियो दिखाई और मुझे ब्लैकमेल करते हुए बोला कि जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करती जाओ, हर बार ये मुझसे खूब पैसे बटोर। उसने सोचा
कि क्यों न पूरी फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं। उसने मुझे कहा कि मैं अपनी वालदा से बात करूं कि मैं और वो आपस में प्यार करते हैं और अब शादी करना चाहते, जिस पर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और परेशान कि अम्मा को इस आदमी पर बहुत ज्यादा शक था। अम्मा को ये आदमी 2 नंबर लगता, इस वजह से अम्मा इस रिश्ते पर कभी भी राजी ना हो, लेकिन मरती क्या ना सिवाय इस बात के और कोई भी था। आखिरकार मैंने हिम्मत करके अम्मा के आगे ये बात, जिस पर अम्मा ने साफ इनकार कर अपने प्यार से अपने सामने बैठा और बोली, अम्मा जिंदगी मैंने गुजार, इसलिए मैंने एक फैसला किया। मुझे एक शख्स, जिस पर अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट, मैंने सोचा कि अब कोई परेशानी, मगर जब अम्मा ने पूछा कि खुशनसीब शख्स, इस कदर परेशान कि जब उसका नाम लेना मेरी आंसू, कौन जानता था कि मैं उसका नाम खुशी से नहीं बल्कि मेरे आंसू किस करब और तकलीफ की वजह से। अम्मा फौरन मेरे पास आकर बैठ और बोली, बेटा वो जो कोई भी होगा मैं तुम्हारी से शादी जरूर, मुझे तुम्हारी खुशी, अब रोना बंद करो और मुझे वो कौन, जिस पर मैंने लड़खड़ाती जुबान से जिब्रान, अम्मा वो जिब्रान, ये नाम सुनते ही तो जैसे अम्मा का गुस्सा बेकाबू, वो कहने लगी, ऐसा हरगिज नहीं हो, वो शख्स से तुम्हारे अब्बा के साथ है, मुझे उस पर तब से ही, जिस पर मैंने अम्मा आप बिला पचा, मुझे जिब्रान से शायद वो बहुत, वरना मैं पूरी जिंदगी वारी गुजरी। ये कहते हुए मैं उठ के हजारों कतार रोने लगी। अम्मा को इस कदर दुखी और तकलीफ में मेरा हरगिज, मगर अम्मा को कैसे सारी मेरा कोई मेरी वजह से अम्मा भी तकलीफ में आ गई, मगर फिर जैसे तैसे करके मैंने उन दिनों बाद मेरी शादी जिब्रान से, शादी के बाद अम्मा को वो शख्स एक कभी भी हमसे खुश ना हो, जैसा कि मुझे भी इससे कोई खास, जानती थी कि वो शख्स सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए मुझसे शादी कर, इसलिए ना तो मेरी कोई सुहाग रात ना ही कोई खुशियां भरी, हर दिन बेकार था। उसने जो चाहा था उसे हासिल हो चुका था। जिब्रान ने महज दौलत के अलावा और कुछ ना चाहा। शादी के चंद दिन बाद जिब्रान से अक्सर लड़ाई झगड़ा, कुछ दिन बाद जिब्रान सीधा सीधा मुझसे जदाद का मुतालबा करने लगा और मार, कौन जानता था कि शहजादियों की तरह पली हुई लड़की एक लालची इंसान से इस तरह से। जब भी अम्मा मेरे पास आती, लेकिन अम्मा मेरे अंदर का दर्द समझने लगी, हर एक से दर्द कैसे बार बार मुझसे जदाद का मुतालबा कर, और मैं इस बात पर खामोश, मार सहती इसके हर बात, मगर खामोश हो जाती कि मैं किससे जाकर जदाद का मुतालबा करूं। अम्मा और अब्बा के बाद तो वैसे भी सारी जदाद तो तुम तब ले से काफी, मगर वो तो जदाद अब करवा, इसके अलावा वो किसी और औरत को मिलने भी रोज जा। इस रात मेरे ऊपर जुल्म सितम की इंतहा ही, मैंने सब बर्दाश्त, कहीं ये शख्स मुझे तलाक। चंद दिन बाद मेरी वालदा की तबीयत, अम्मा ने मुझे अपने घर बुलाया, मैं बेहद, मगर ये दुख अब किसी को ना सुना सक, क्योंकि शादी भी मेरी ही मर्जी से की गई। जिब्रान अब मुझसे थोड़ा थोड़ा अच्छा बर्ताव करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि इसकी अम्मा अब बीमार रहने लगी और ये वैसे तो जदाद मेरे नाम कर, मगर इस रात वो अम्मा के कमरे में छुपके से गया और जाकर अम्मा के मुंह पर हाथ और कहने लगा, खो बुढ़िया, ये सारी जदाद और फैक्ट्री के कागजात मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को जान से। अम्मा घबरा और कुछ भी सोचे समझे बगैर अम्मा ने कागजात पर दस्तखत कर दिए। ये सारी जदाद अब इसकी हो। अगली सुबह वो उठा और मेरे पास आया और कहने लगा कि देखो मैं तो जो चाहता था मैंने हासिल, अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक। मैं घबरा और इससे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि देखो जब ऐसा, तुम जो चाहते हो करो, तुमने हासिल कर लिया है, अगर तुम्हें दूसरी शादी भी करनी है तो तुम कर सकते, मगर खुदा का वास्ता है मुझे मत। जिब्रान ने कुछ भी ना सोचा और मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक, ये लफ्ज सुनते ही जमीन पर की दम्मा ने फाड़ दिया और अब को अपनी आंखों के सामने तलाक। वो बहुत मजबूत औरत, मगर अब्बा अचानक वफात के बाद सब कुछ संभालना और इस तरह से शादी, मुझे रोज मरते देख, ये उनसे बर्दाश्त। अम्मा वहीं पर ढेर हो, उनका दम उठ चुका, वो इस दुनिया से रुखसत हो। जिब्रान ने सारी जदाद हासिल कर ली और वो मुझे यूं ही छोड़कर वहां से निकल गया कि इस पर किसी बात का और जाकर इसी औरत से निकाह, जिसकी तस्वीर मुझे चंद दिन दोस्त। आज मुझे अपर बेहद अफसोस, काश की दावत पर ना गई। फैक्ट्री के कुछ लोगों ने अम्मा के कफन दफन का इंतजाम, मगर जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि फैक्ट्री अब अम्मा की न, तो सारे ही आए सच। मगर वहीं पर चौकीदार, जो कि हमारी था, जिससे मैंने कभी अच्छे से बर्ताव नहीं, वो अब्बा का बहुत ही वफादार, अब्बा ने उस पर बहुत से एहसान, वो मुझे अपने घर ले, उसकी बीवी मेरा बहुत जाने ये से अच्छे काम थे जिनका मुझे, मगर मैं बहुत ज्यादा, मेरी वालदा आज भी मेरे साथ हो सक अगर मैंने ये सब ना, अगर अब इस पछतावे का कहता, मेरी जिदाद और मेरी फैक्ट्री अब इसके नाम, मैं दर दर की ठोक। मेरी आपसे एक बार जरूर कि आप जो करने जा रहे हैं, उम्मीद कर आपको ये कहानी जरूर एक सब, वीडियो